Hello everyone, welcome back to Knock Knock Yaar Education. Myself Alka Singh Chauhan, and I hope all of you are also doing good because we are meeting after a long time here with a fresh video on system of linear equation, because most of you are facing problem in system and its a solution. So today I will be discussing about this topic because this topic is going to be very helpful while studying linear algebra. So let's get started with it. Before starting with this topic, we should know what is the system of linear equation. So everybody knows about the meaning of the equation, then linear, and today we will be just talking about the system. So if we have a equation like this, a11, a12, x2 up to this is, we have a1n xn is equal to, suppose we have b1. So this is called as a equation, and here the degree of each variable, here x1 x2 xn are variable, this one, so that is why this is called as the linear equation. But once this linear equation becomes more than one and we have to solve the equation simultaneously, that becomes a system. Like I want to say a21 x1 plus we have a22 x2 and then we have a2n xn equals to b2. So now this is going to be a system of two linear equations, where this a11, a12, a1n, this b1, b2, all the scalars that we have, these are coming from a field. Okay, so whatever field we are using in this system, that is going to come from there. So basically here we are using the field of real numbers, so all these scalars, all these coefficients will be coming from where? From the field of real numbers. So in a similar way we are going to study in a more general way. So we have am1 x1 plus am2 x2, and then here we have amn xn equals to bm. So this is what we call is a system of linear equation, where we have n variables which are x1, x2, xn, variables I mean to say unknowns, or the values that we need to find, we need to solve. And here all these aij are the elements of the field, and this b1, b2, bm are also coming from the field f. So we express always this in form of ax is equals to b, where a is called as your coefficient matrix. All of you already knowing about it. This is called as the coefficient matrix of the system. So we can also express this in this form of a11, a12, and we have a1n. Similarly we have, just give me 1 minute, yeah. So similarly this is a21, a22, and we have here a2n. Last row am1, then we have am2, and here we have amn, and this is going to be a unknown vector which we have to actually find out. This is your xn, and here we have the b1, b2, and this is your bm, which is the right hand vector. So this is a matrix, this is called as your coefficient matrix, this is your x, which is your unknown vector. Here we have to find out all these x1, x2, xn, and this is b1, b2, bm. So you can also see here that this matrix is of order m cross n, this vector is of order n cross 1, and finally we will get m cross 1 vector. So you can see it from here. So this is what we have to do. A system will be given to us in form of ax is equal to b, and we have to find out this x vector, that is called as the solution. And one more important thing I would like to mention here, because most of you are always confused. Solution vector x is going to be a vector which is going to satisfy every equation of this system. सपोज हमें कोई x वेक्टर मिल जाता है, x1, x2, x3, xn सारे अननोन्स हम निकालते हैं, आप में से कोई कहता है मैम दिस इज़ द सॉल्यूशन, बट अगर इनमें से इस सिस्टम की किसी भी एक इक्वेशन को इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. यानी कि कोई भी वेक्टर इस सिस्टम का सॉल्यूशन तभी बनेगा जब वो इन सारी की सारी m इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. आप देख सकते हो हमारे पास ये सारी m इक्वेशंस हैं और n नंबर ऑफ अननोन्स हैं. सो आई होप कि अब आपको ये जो बेसिक डेफिनेशन है सिस्टम की वो क्लियर हो गई होगी. सो नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स कि हम सॉल्व कैसे करेंगे सिस्टम को. ठीक है, सो आई जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ आइडिया, बट उससे पहले वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स वी हैव.
ठीक है। सो Ax इज इक्वल्स टू बी, हमारे पास ऐसा अभी हमने देखा, यहाँ ये एक सिस्टम है जहाँ पे A एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। सो एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ स्क्वायर सिस्टम लाइक n नंबर ऑफ इक्वेशंस विद n नंबर ऑफ अननोन्स। अगर हमारे पास यहाँ पे m इक्वेशन हो जाती लाइक a n1 x1 a n2 x2, सो हम मोस्ट जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट m क्रॉस n। जब m n के बराबर हो जाएगा तो वो n क्रॉस n बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो केसेस जो जनरेट होते हैं वो ये हैं कि वी कैन हैव बी ईदर इक्वल टू ज़ीरो और बी कैन बी इक्वल टू नॉन ज़ीरो वेक्टर। तो अगर हमारे पास ये बी जो है वो ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा तो हमारे पास सिस्टम क्या बन जाएगा, Ax इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अगेन द डायमेंशंस आर गोइंग टू बी सेम, m क्रॉस n क्रॉस 1 एंड दिस इज अ m क्रॉस 1 वेक्टर. So this, when the right hand side vector this becomes equal to 0, such kind of system is called as the homogeneous system of linear equations. This is called as homogeneous system of linear equations. So I hope अभी आपको homogeneous और non homogeneous का difference भी पता लग गया हो. In a similar way, अगर हमारे पास क्या हो रहा हो, ये जो b वेक्टर है वो नॉन ज़ीरो है। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें भी एक कन्फ्यूजन होता है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि हमने पढ़ा कि ये जो b था वो मेरे पास b1 b2 अप टू bm है, तो what students actually understand from this b नॉन ज़ीरो कि इसका हर एक कंपोनेंट शुड बी नॉन ज़ीरो, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द केस। अगर इस b1 b2 bm में से एटलीस्ट कोई भी एक कंपोनेंट अगर नॉन ज़ीरो हो गया, देन दिस b वेक्टर विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन ज़ीरो वेक्टर। तो ऐसा मत समझना कि जब ये b1 b2 bm सारे नॉन ज़ीरो होंगे तभी हमारे पास b नॉन ज़ीरो होगा। नो, दिस इज़ नॉट द केस। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट इफ बिकम्स नॉन ज़ीरो, देन b वेक्टर विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन ज़ीरो वेक्टर। सो इन दिस केस हमारे पास Ax इज इक्वल टू b ही मिलेगा हमें, वेयर b इज़ नॉन ज़ीरो, and whenever this b is non-zero, then this system will be considered as the non-homogeneous system of linear equations. Non-homogeneous system of linear equations. So I hope आज आपको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पता लग गया हो। अब आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। हमने पढ़ा था वेक्टर स्पेस कौन सा सोल्यूशन सेट फॉर्म करता है, कौन सा नहीं करता है लीनियर अलजेब्रा में। सो यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम हियर। एंड आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली हम जिस पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस पे है। जब आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस, क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू होमोजीनियस। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हमको इसे नहीं पढ़ना है। तो आज का जो हमारा फोकस होगा वो होगा हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज़ ऑफ होमोजीनियस टाइप. So I hope we can start with this homogeneous system now. So let's get started with this homogeneous system. तो हमारे पास अभी हमने देखा होमोजीनियस सिस्टम Ax इज इक्वल टू ज़ीरो टाइप का होता है, जहाँ पे हमारा जो राइट हैंड वेक्टर है दैट इज़ b वेक्टर, वो हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पे हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पे डिस्कस करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन a homogeneous system of linear equation can have. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आप देखोगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कोई भी x वेक्टर जो इस को सेटिस्फाई कर देगा वो सोल्यूशन बन जाएगा इस सिस्टम को। सो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, यानी कि अगर हम ये जो हमने कंसीडर किया था x1 x2 अप टू xn, इन सबको अगर हम क्या मान लेते हैं, ज़ीरो ज़ीरो अप टू ज़ीरो, आप देखो ये ऑलवेज सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब आप ए मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली सारे जो बी वेक्टर आपका जो ज़ीरो आ रहा है वो ज़ीरो ज़ीरो ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो होमोजीनियस सिस्टम होता है उसके पास हमेशा एक सोल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा, और वो कौन सा है, ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ज़ीरो सोल्यूशन। तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम, और एक दूसरा वर्ड आप सबने सुना होगा दैट इज़ कॉल्ड एज द इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एक सिस्टम के पास सोल्यूशन है
भले ही वो कैसा हो, यूनिक सोल्यूशन हो, इनफाइनाइटली मैनी हो, अगर उसके पास सोल्यूशन है तो उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। एंड अ सिस्टम which does not have any solution that is considered as the inconsistent system। यानी एक सिस्टम था, हमने उसको चेक किया, उसके पास सोल्यूशन नहीं हुआ, तो उसको हम बोल देंगे दैट इज़ द इनकन्सिस्टेंट सिस्टम। बट द पॉइंट हियर इज़ दैट अ होमोजेनियस सिस्टम विल ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन दैट इज़ द ज़ीरो सोल्यूशन। तो होमोजेनियस सिस्टम कभी भी इनकन्सिस्टेंट नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। यानी कि अब जो हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम में, वो दो तरीके के हो सकते हैं। कैसा? एक तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हो सकता है और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, वी कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्योंकि हमें इसी से रिलेटेड बात करनी होती है। अगर आप चेक भी करोगे, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे या हम LILD वेक्टर्स चेक करते हैं, तो हमें यही चीज़ें हेल्प करती हैं। तो हमें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देख के ही सारी इन्फॉर्मेशन का पता लग जाता है। सो अगर आप देखोगे यूनिक सोल्यूशन को कई बार आप देखोगे एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन हम बोल देते हैं, या फिर हम कह देते हैं ज़ीरो सोल्यूशन। मतलब यूनिक सोल्यूशन का मतलब दिस सिस्टम विल हैव ओनली वन सोल्यूशन, एंड हमें पता है कि एक सोल्यूशन तो है ही इस सिस्टम के पास हमेशा, दैट इज़ ज़ीरो सोल्यूशन। इसलिए यूनिक सोल्यूशन वो होता है जब ये जो x है हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ ये ज़ीरो वेक्टर आ जाए। अब अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस को आप नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस में भी कंसीडर कर सकते हो। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोल देंगे या कभी कभी नॉन ज़ीरो सोल्यूशंस भी बोल देते हैं। बट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि नॉन ज़ीरो सोल्यूशन बोल तो रहे हैं, बट नॉन ज़ीरो सोल्यूशन इन द सेंस कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्योंकि इस सिस्टम के पास x = 0 हमेशा एक सोल्यूशन होगा, भले ही इनफाइनाइटली हो या यूनिक हो, यानी नॉन ट्रिवियल हो या ट्रिवियल हो, ज़ीरो सोल्यूशन इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द सोल्यूशन। तो यहाँ पे ज़ीरो सोल्यूशन हम कंसीडर करके चलते हैं। एंड इन दिस केस अगर हमें कोई भी x एक नॉन ज़ीरो वेक्टर सोल्यूशन मिल जाता है, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और द इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नो सोल्यूशन का कोई केस नहीं है। नाउ द पॉइंट कम्स कि हम चेक कैसे करेंगे। चेक इन द सेंस कि हमारे पास जो सिस्टम है उसके पास यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, क्योंकि वही हमारा आज का जो पॉइंट है वही है डिस्कशन का कि ये चेक कैसे किया जाए। तो मैं आपको कुछ बहुत सिंपल सी टूल्स बताऊंगी, अगर आप उनको याद कर लोगे तो आपके सिस्टम में कभी भी कोई भी सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो अभी जैसे हमने देखा Ax = 0, दिस वॉज आवर होमोजीनियस सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ जब A जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वहाँ से हम अपना डिस्कशन से आराम से देख लेंगे कि कब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली मैनी होगा। सो यहाँ पे आपको याद क्या करना है, क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। आप डिटर्मिनेंट निकालो इस A मैट्रिक्स का, इफ़ दिस कम्स आउट टू बी नॉन ज़ीरो। कैसे आता है ये सब कुछ भी मैं आपको समझाऊंगी, बट दिस आई विल एक्सप्लेन यू वाइल आई विल बी टीचिंग यू द कोर्स ऑन लीनियर अलजेब्रा। यहाँ के लिए आप सिर्फ ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास ये जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, मतलब n क्रॉस n का सिस्टम था, तो वहाँ पे जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अगर वो n क्रॉस n ऑर्डर की है, उसका डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास कैसा आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है, इसका मतलब हमारे पास रैंक क्या हो जाती है, रैंक फुल हो जाती है, यानी n हो जाती है। इस केस में हमको क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि हमें यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एंड 0 0 is going to be the only solution for this system. And again there is one more point कि अगर हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो कैसा आ गया, 0 आ गया। अब अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो आप सबने रैंक पढ़ा होगा कि रैंक जो है वो n तो कभी नहीं होगी, यानी कि जो रैंक हो रही होगी वो हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस देन n हो रही होगी। तो यहाँ से वी विल बी सेइंग दैट वी हैव infinitely many solutions, or we can say we can have non-trivial solution. That's how we have to proceed. But the point is that ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास जो सिस्टम है वो स्क्वायर सिस्टम हो, यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हमारे पास कुछ और भी टेक्निक होनी चाहिए। सो देन हाउ वी विल बी चेकिंग दैट, यानी कि अब अगर हमने ये जो A m क्रॉस n लिया था,
यहाँ पे अब हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देन हाउ वी विल बी चेकिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। अगर आप देखो ये जो एक्स वेक्टर था ये हमारे पास x1 x2 xn था, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स या फिर जिनको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ अननोन्स, वो हमारे पास कितने हैं, काउंट करो आप ज़रा, x1 x2 अप टू xn n है। यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे। व्हाट वी विल बी डूइंग, अगर हम रैंक ऑफ ए निकालते हैं और वो किसके बराबर आ जाती है, नंबर ऑफ़ अननोन्स के बराबर आ जाती है, तो फ्रॉम हेयर वी विल कंक्लूड कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। एंड अगर हमारे पास क्या होता है, जो रैंक आ रही है ए मैट्रिक्स की, ठीक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, वो हमारे पास लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ जाती है, देन फ्रॉम हेयर वी विल कंक्लूड द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का जो केस है वो बन जाएगा। बस इतनी सी दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको ये चीज़ याद हो जाती है तो होमोजीनियस सिस्टम में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है। सो अगेन आई विल शो यू, if you have a square system, that is the coefficient matrix is of n cross n order, you can very easily find out either determinant or rank, or from there you can check whether the solution is unique or infinitely many. And if your coefficient matrix is a rectangular matrix, still you can check by comparing it with the number of unknowns. If the rank of the matrix becomes equal to the number of unknowns, you have unique solution, and if it is less than the number of unknowns, you have infinitely many solutions. So this is what how we check whether the system has trivial solution, unique solution or infinitely many solutions. So now I will be giving you a few examples so that आपको और अच्छे से clear हो जाएं ये चीज़ें. So the very first example that I am giving you is this. आपको देखो एक system दिया है जिसको हम अगर ax is equal to 0 की फॉर्म में कंपेयर करें, so we have 1 3 minus 2, then we have 2 minus 1 4. This is your 1 minus 11 14, and this you have x y z. आप देखो 3 अननोन्स है आपके पास, and this is this. तो आपको दिख रहा है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। सो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें कर सकते हो, या तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के इसकी रैंक निकाल लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से भी जा सकते हो। व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ दैट, हम इसको रैंक के मेथड से निकालेंगे। सो दिस इज़ 2 minus 1 4, 1 minus 11 and this is 14. एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं R2 में, आई एम राइटिंग डाउन इट वंस, बाकी अगली बार से आप समझ जाना। दिस R3 में हम लगाएंगे R3 minus R1। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस। सो दिस इज़ 1 3 minus 2, here we have 0, then minus 1 minus 6, that is your minus 7, then you have 8 over here, again this is 0, then minus 11 minus 3 you have minus 14, and then 14 plus 2 you have 16. Okay, so again you can see that R3 में अगर हम R3 and minus का 2 R2 कर देते, what it will become 1 3 minus 2, and this is going to be 0 minus 7 8, this is 0, minus 14 plus 14 0, and this is 16 minus 16 0. Now from here you can see that rank of A matrix is your 2, which and number of unknowns we have 3 x y z, which is not equal to 3. So what does it imply कि हमारे पास जो सिस्टम है उसके पास कैसा सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है। ठीक है, वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। सो आई होप दिस केस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी तो ये था कि हमने सिर्फ ये निकाला टाइप ऑफ सोल्यूशन, यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी होगा। सपोज अगर आपसे कोई कहता है सोल्यूशन भी बताओ, सो व्हाट यू विल डू, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद आपको लास्ट में जो मैट्रिक्स मिली है आप उसको लो और उससे आप सारी चीज़ें कंक्लूड कर दो। हियर यू हैव 0 minus 7 8 0 0 0, and then here you have x y z which is equals to this. अब आप यहाँ से फॉर्म करो x plus 3y minus 2z equal to 0, then you have minus 7y plus 8z equal to 0. अब एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यहीं पे हम लोग, विच इज़ कॉल्ड एज द लीडिंग वेरिएबल एंड फ्री वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी है उसमें वो पहला वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो, दैट इज़ कंसीडर्ड एज द लीडिंग वेरिएबल।
अब इस इक्वेशन में आप देखो x का कोफिशिएंट 1 है, तो वो पहला वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है वो कौन है? x, तो x इज़ द लीडिंग वेरिएबल। यहाँ अगर आप देखोगे दिस इज 0 इंटू एक्स माइनस 7y, तो पहला ऐसा वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो कौन है? x का तो कोफिशिएंट 0 हो गया, y लीडिंग वेरिएबल, तो z बचा, z कैसा हो गया? फ्री वेरिएबल हो गया, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम z को ले लेंगे k, जहाँ पे k R से बिलोंग करेगा। यहाँ पे अब अगर हम रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? 8k/7। ऐसे ही आप x में यहाँ पे रख लो, तो क्या मिल रहा है हमें? 2z यानी 2k एंड माइनस 3y यानी 24k/7। तो सी फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द सोल्यूशन। आई होप नाउ दिस इज़ फाइन विद एवरीवन। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो दिस इज़ 14 माइनस 24, दिस इज़ माइनस 10k/7। तो आपको जो सोल्यूशन मिला विच इज़ योर x/z, वो आपको क्या मिल रहा है? माइनस 10k/7, देन यू हैव 8k/7 एंड दिस इज़ k, जहाँ पे आपका k बिलोंग करता है R से। अब आप देखो, अगर आप k को 0 रख रहे हो तो आपको 0 सोल्यूशन भी मिल रहा है। मैंने आपको बोला था इनफाइनाइटली और नॉन ट्रिवियल में इंक्लूडेड है 0 सोल्यूशन। k की वैल्यू अगर आप कुछ 1 रख देते हो सपोज, तो आपको नॉन ज़ीरो सोल्यूशन भी मिल रहा है, इसलिए इसको हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस भी बोला है। ठीक है, तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे भी वी हैव टू डू द सिमिलर थिंग, वी हैव टू चेक व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन दिस सिस्टम पजेस। तो अब आई थिंक पीछे वाले क्वेश्चन से आपको ये समझ आ गया है कि हम सिस्टम को लिखेंगे कैसे। अब हम यहाँ पे सिर्फ ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब 2 - 1 1, वी हैव 3 2 1, देन वी हैव 1 - 3 5। नाउ यू ऑब्जर्व वन थिंग, यहाँ पे अगर हमारे पास इस एंट्री पे 1 1 पोजीशन पे 1 हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। तो हम रो को इंटरचेंज कर लेते हैं इस तरीके से कुछ। तो फाइनली व्हाट वी विल गेट, आई एम राइटिंग इट डाउन हियर, वी हैव 1 - 3 5। आप देखो डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर आप डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से जाते हो, वो सिर्फ आपको क्या देगा? टाइप ऑफ सोल्यूशन, यानी सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, बट determinant value will not give you the solution. I will repeat the point which I told you just now कि आप अगर determinant के प्रोसेस से जाते हो तो वो सिर्फ आपको टाइप ऑफ सोल्यूशन बताएगा कि यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। बट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला, तो डिटर्मिनेंट आपको सोल्यूशन नहीं देगा, आपको फिर यही प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली यही लगाओ, दैट वुड बी गुड। दिस इज 3 2 1 and we have 2 - 1 1. अब elementary row operation we know that R2 - 3 R1, and on third row we are applying, okay, this is R2 R3 - 2 R1. So once we will apply, what we will get? 1 - 3 5 0. Then here we are getting 9 9 plus 2 is your 11. Then here you have -14. Then here you have 0. Then this is your 5. And here you are getting -9. Now you can see if I am going to apply the elementary row operation here, so this entry always we will get a non-zero entry, and here we will get 0. This will remain same, 1 - 3 5. So you can see we will get here a non-zero entry if you are going to apply the elementary row operation. So rank of A matrix become what? That becomes equal to 3, which is equal to the number of unknowns. Number of unknowns क्या है? x y z यानी 3. सो क्या हुआ हमारे पास? द गिवन सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन है। नाउ अगर आप कंपेयर भी करते हो यहाँ पे, तो दिस कोफिशिएंट इंटू z इक्वल टू 0 विल गिव यू z। ऐसे ही आप बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन कर दो, आपको वाई जेड भी 0 मिल जाएगा। तो दिस सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन, यानी कि ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि 0 सोल्यूशन। तो आपके जो x और y और z हैं वो पूरे पूरे क्या आ जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो आपको, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो नाउ वी विल गो टू आर क्वेश्चन नंबर 3 एंड देखते हैं ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है। So the question says the value of lambda for which the system has non-zero solution. So question पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है
क्वेश्चन कह रहा है हमें लैम्डा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस सिस्टम के पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है। सिस्टम के पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है कि सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो वी कैन वेरी इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम हेयर कि जो Ax इज इक्वल टू ज़ीरो सिस्टम हम फॉर्म करेंगे वहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा, यानी जो रैंक होगी वो लेस देन 3 होगी। सो नाउ बट करना क्या पड़ेगा, हमें इस सिस्टम को थोड़ा सा फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा एक्स, क्योंकि आपको इसे इधर लाना पड़ेगा, प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। देन वी हैव 3 प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। देन वी हैव 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस लैम्डा z इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखोगे वो क्या आ रही है, 1 माइनस लैम्डा 2 3, देन वी हैव 3 टाइम्स 3 1 माइनस लैम्डा 2, देन वी हैव 2 3 1 माइनस लैम्डा। एंड हमें क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। अब 0 होगा तो हमको बस वही लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब हम यहाँ पे इवैल्यूएट कर लेते हैं। बट आप में से कुछ बच्चे क्या होंगे, पूरा डिटर्मिनेंट जो है आप इसको सॉल्व करोगे एंड फिर निकालोगे। एंड आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी यहाँ पे, और वो क्या है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। आप एक काम करो, आपको पता है कि अगर हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी भी दूसरी रो का लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द होल डिटर्मिनेंट व्हाट यू कैन डू इज़ दैट, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि C1 में हम क्या कर सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ यू सी this determinant value becomes what, this is going to be 3 plus 2 plus 1, that is 6 minus lambda 2 3, then we have again here 6 minus lambda, then we have 1 minus lambda 2, and यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, again 6 minus lambda, this is 3 1 minus lambda। take 6 minus lambda common from the first column and what it would be, 1 1, then you have 2 1 minus lambda 3, you have 3 2 1 minus lambda। now you see one thing, most of you are going to solve this determinant value also, but the point here is that you should be smart enough to understand कि अगर एक से ज़्यादा लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई होती, अगर आ रही होती तो यहाँ पे वो मेंशन करते, बट उन्होंने द वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछा, यानी कि हमें सिर्फ इसी, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो दिस 6 माइनस लैम्डा विल बिकम इक्वल टू 0, लैम्डा वी विल बी गेटिंग इक्वल टू 6, देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व दिस। एंड अगर आप करोगे भी सॉल्व तो आपको यहाँ से लेट्स सी करके देख भी लेते हैं, सो दैट द पॉइंट विच आई मेक यू टू अंडरस्टैंड आपको समझ आ जाए। दिस इज़ आर 1 1, देन वी हैव 2 3 1 माइनस लैम्डा 2, एंड देन वी हैव योर 3 1 माइनस लैम्डा, फाइन 3 1 माइनस लैम्डा। सो व्हाट यू कैन डू हेयर इज़ दैट, या तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लो यहाँ से, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन अप्लाई R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R1, बिकॉज वी नो दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू विल नॉट चेंज बिकॉज वी आर अप्लाइंग दिस रो ऑपरेशन। सो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर minus 1 minus lambda minus 1, then here we'll get 0, this is 1, and here you will get minus 2 minus lambda, fine, because 1 minus lambda minus 3 ऐसा मिल रहा है हमको। now you solve this, तो this is 1 times and this is going to be 1 plus lambda 2 plus lambda plus 1, see we are getting this, ऐसा कर देते हैं। and once you are going to do it with the help of 2 it will become 0, एंड यहाँ पे हमारे पास लैम्डा माइनस 6 ऑलरेडी आ रहा था, सी हियर, सो यहाँ से हमें लैम्डा इज इक्वल टू 6 मिल गया। वंस यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइन। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी आर गेटिंग, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ यू सी वन थिंग, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नीड टू फाइंड आउट लैम्डा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 9 minus 4 into 5. Now you see this is less than 0, we will get imaginary roots. So obviously we are working on the field of real number. So I have already told you in the starting of this session कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने सिस्टम लिखा था a11 x1 plus a12 x2, all those coefficients are coming from the field of real numbers.
So obviously this lambda should also be a real number. That's why they have set the value of lambda. अदरवाइज क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता अगर मोर देन वन रियल वैल्यूज़ आ रही थी, तो आप सिर्फ इतना ही सॉल्व कर लेते. आपको अपने आप पता होना चाहिए कि यहाँ से ऑब्वियसली वी विल बी गेटिंग ईदर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ और दिस विल बी गेटिंग इक्वल टू 0. आई होप नाउ द पॉइंट इज क्लियर. आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू कैन से. यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिया है विच इज़ ऑब्वियसली अ होमोजीनियस सिस्टम, और आपको पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशंस बताओ. अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सिस्टम सॉल्व किया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था दैट वाज अ सिस्टम जिसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस थे. पहला क्वेश्चन ही था. तो आई हैव टोल्ड यू अ कॉन्सेप्ट अबाउट लीडिंग वेरिएबल एंड फ्री वेरिएबल. तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है. अगर आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलआई सॉल्यूशंस पूछा है, तो एक तो तरीका ये है कि आप याद कर सकते हो कि Ax इज़ इक्वल टू 0 है. अगर आपको कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलआई सॉल्यूशंस पूछता है, कॉन्सेप्ट आप LA में भी बहुत बार पढ़ चुके हो, दैट इज़ इक्वल टू n माइनस r, जहाँ पे n क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ़ अननोन्स होते हैं जो आपको इवैल्यूएट करने होते हैं. जैसे यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 है, तो n की वैल्यू यहाँ 5 हो गई. r जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A होती है कि हमारे पास रैंक ऑफ A मैट्रिक्स जो होगी वो हम निकाल देंगे, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलआई सॉल्यूशन होंगे. बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स. ठीक है, नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स. तो एक ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास. कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं. 1 2 वी हैव 2 -1 देन वी हैव 3. दिस इज़ 1 2 3 1 1 देन वी हैव 3 6 8 1 5. नाउ वी विल अप्लाई द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. तो क्या मिलेगा हमें, 1 2 2 वी हैव 1 -1 3. r2 माइनस r1 करेंगे, दिस इज़ 0 दिस इज़ 0 दिस इज़ 1 देन वी गॉट 2 -2. देन यहाँ पे r3 माइनस का हम 3r1 करेंगे, तो दिस इज़ 0 दिस इज़ 0. देन वी हैव 8 - 6 दैट इज़ 2. देन here we have 4 and here we will be having minus का 4. So now you see we again apply the elementary row operation, r3 minus 2 r2, what we will get 1 2 2 minus 1 3 and then we have 0 1 this is 2 minus 2 0 0 0 0 0. Now you see अगर आपको सिर्फ आंसर निकालना है तो आप निकाल सकते हो. आपके पास 5 वेरिएबल्स थे तो दैट वाज 5 एंड रैंक आपको दिख रही है कि 2 आ रही है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी 3. बट एज फार एज द कॉन्सेप्ट इज़ कंसर्न, नंबर ऑफ़ एलआई सॉल्यूशंस पूछा है. अगर आप इससे फॉर्म करोगे इक्वेशंस जो आपके पास आ रही हैं, 2x3 minus x4 plus 3x5 equal to 0 and here we have x3 plus 2x4 minus 2x5 equal to 0. आप देखो आपके पास जो एलआई सॉल्यूशंस होंगे वो डिपेंड करेंगे किस पे, नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स पे, क्योंकि जो फ्री वेरिएबल है वही तो इंडिपेंडेंट है. लीडिंग वेरिएबल्स की वैल्यू तो उन पे ही डिपेंड कर रही है. x1 आपके पास यहाँ देखो लीडिंग है, x3 आप देखो यहाँ पे लीडिंग है, तो बचे कौन से फ्री वेरिएबल्स हमारे पास. तो फ्री वेरिएबल्स विच आर लेफ्ट विद अस आर x2 फ्री वेरिएबल हो गया एक हमारे पास, एक x4 हो गया फ्री वेरिएबल और एक x5 हो गया फ्री वेरिएबल. तो हमारे पास इसलिए भी आंसर 3 आ रहा है. अब आप x5 को k1 रख लो, x4 को k2 रख लो, x2 को k3 रख लो, वैल्यू निकाल लो. अब आप देखोगे 3 ही आपको एलआई सॉल्यूशंस मिलेंगे, बाकी सब जो होगा वो इसी x यानी x1 x2 x3 x5 का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा. That's how it is. So this was my humble effort to make you people explain about the homogeneous system of linear equation and its type of solution. So अब मैं आपको एक question दे रही हूँ as a homework. The question says find the value of k for which the system has non-trivial solution. आपको ये एक सिस्टम दिया है, आपको k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस सिस्टम के पास non-trivial solution होगा. आप जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो. एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन करेक्टली. एंड देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितना रिस्पॉन्स आता है. एंड अगले लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. डोंट मिस द लेक्चर. एंड वो लेक्चर आपको तभी समझ आएगा तब आपको ये होमोजीनियस सिस्टम समझ आ चुका हो. सो आई होप ऑल ऑफ यू वुड लाइक दिस लेक्चर एंड प्लीज़ मेक श्योर you give a positive feedback or negative whatever feedback you want to give in the question box. And
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. वी विल श्योरली ट्राई टू reply to your query. So that's it for today's session. Hope to see all of you in the next session. Thank you so much.